Let me welcome none other than one and only Mistress Khushbu ma'am, all the way from Gujarat to us. Standing to me today. Thank you very much. My Richard, Alvida morning, everyone. I'm so happy to be here with you all. Thank you so much for your standing ovation, for your love, for your respect. Thank you Govind sir, thank you Madan sir, thank you all the leaders, Sudipta sir, and thank you my Richard, thank you Chetan, my husband a lot, and thank you my kids for the love because of which I'm here. Thank you very much. I'm really feeling overwhelmed today to be with you all here on the stage. I got an opportunity to speak in front of you. What do we say in Nagamis that I don't know? Kini kaase? No. Manu na jana. Nagamis manu na jana. But I know Hindi and English. So majority of you know Hindi, right? Or majority is English. What is the preference? How many know English? Okay, so Hindi will be more preferable. Mix, right? My topic, my husband selected yesterday and told me, I have selected your topic. Life is celebration. I said, oh really? You selected the topic. And it's fine. I can mold my own topic in this topic, that is, life is a celebration, right? We are all celebrating since this morning. Yes or no? We all like celebration. Why we want to celebrate life? It's God's gift. I can see in each one of you, हर एक इंसान में I can see God has expressed Himself through you. God might be, भगवान को लगा होगा मैं नागामीज बन के देखता हूँ जीवन कैसा है. भगवान को लगा होगा मैं गुजराती बन के देखता हूँ जीवन कैसा है. He wants to feel through each and every one of us. I can feel Him through each and every one of you. Right? In different way, through your love, through this token of love. That's why I'm wearing this. Feeling is the most important thing if you want to celebrate life. Life is a celebration, but if you don't have freedom, then can you celebrate? No. Before moving forward, can I introduce myself? My name is Khushbu Chawda, as you all know. I am actually by qualification a mechanical engineer. I also did diploma in dance, Kathak, because I love dance. I thought business is also very good things. I did diploma in entrepreneurship. Then I came across a subject that is NLP, that is Neuro-Linguistic Programming. मुझे लगा ये भी कुछ अच्छा topic है. Let me learn related to psychology. मैं तो साइंस स्टूडेंट, इंजीनियरिंग किया मैंने, आई एम एन इंजीनियर, लेकिन साइकोलॉजी मुझे किसी ने नहीं सिखाई थी. डील विथ पीपल, साइकोलॉजी मीन्स ह्यूमन माइंड, डीलिंग विथ पीपल. आई लव्ड इट. आई डिड अ कोर्स इन NLP. आई बिकेम एन NLP ट्रेनर. So I am actually, I want to introduce myself in few words, I am a student of life. मैं स्टिल लर्न करती हूँ, हर रोज़ सीखती हूँ, हर रोज़ लर्न करती हूँ. बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी नागामीज भी है जो मुझे सीखनी है, राइट? इट्स अ वेरी गुड लैंग्वेज, राइट? आसे just pick this word, it's being repeated. I can understand very much. 50% नागामीज मैं समझ ली आज मैंने. After hearing, I can now correctly understand Nagamis. See, this is the power of learning. If you have learning attitude, तो आप कहीं भी जाओगे कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे, है ना? Life is a celebration. Now moving on to our topic. अगर freedom नहीं होगी तो आप celebrate कर पाएंगे? Not at all. So one and the foremost thing जो कि ज़रूरी है if you want to celebrate life, that is freedom. अच्छा, आपको अगर कोई पकड़ के कह दे कि तुम्हें डांस करना ही पड़ेगा, you have to dance. You have to dance until I tell you no. आप करोगे डांस? मज़ा नहीं आएगा. आपको कहेगा नहीं 2 घंटे तक बिना रुके करना है और बिना रुके स्माइल भी आपको रुकनी
फिर वो सेलिब्रेशन रहेगा? नहीं रहेगा, बिकॉज देयर इज नो फ्रीडम। फ्रीडम कब होती है? जब आप अपने मन से, अपनी मर्जी से कुछ करते हो, तब तक करते हो जब आप चाहते हो। दैट इज कॉल्ड रियल फ्रीडम। सो मैंने एक चीज़ ये सीखी कि इस बिजनेस में आपको फ्रीडम के लिए ट्रेन किया जा रहा है। यू गेट ट्रेन्ड टू गेट फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, राइट? You get many kind of freedom to speak, to do business in your way. वरना business meetings या corporate meetings आपने देखी नहीं है शायद। मैं जब कॉलेज में लेक्चरर थी, एज एन इंजीनियरिंग लेक्चरर, हमारे कॉलेज में मीटिंग्स हुआ करती थी, और इतनी बोरिंग मीटिंग कि मीटिंग के बाद आपको लगेगा मीटिंग हुई थी क्यों, कुछ तो उसमें से निकला ही नहीं। बस मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार करवाते हैं हमारे पास, लंबी प्रोसीजर होती है, लेकिन उसमें से कोई रिजल्ट नहीं आता है। वैसी बोरिंग मीटिंग होती है। वहाँ कोई नहीं कहता कि कम ऑन डांस। दैट इज कॉल्ड सोफिस्टिकेशन। लेकिन वो सोफिस्टिकेशन क्या काम का है जिसमें मज़ा ही ना हो? कुछ लोगों को यहाँ आके ऐसा लगता होगा कि यार इतना सारा वो नहीं मज़ा आ रहा है। देयर शुड बी सोफिस्टिकेशन। लेकिन ये जो रियल फ्रीडम आपको दी जा रही है, कमिंग ऑन स्टेज एंड यू डांस इन योर ओन वे, आपके अंदर, आई एम वेरी श्योर, आज रात को है ना, ये जो मोमेंट है वापस रिकॉल करोगे, एंड देयर विल बी अ स्माइल ऑन योर फेस, नेवर अ रिग्रेट। एम आई राइट? यू विल नेवर रिग्रेट डांसिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, बट यू विल रिग्रेट putting your head down when somebody insults you, right? So this business has a power to give you that feeling of freedom so that you can celebrate your life. Now, for celebrating a life, we need one thing, and without that nothing is possible, even life is not possible. वो क्या है एक चीज़ जो इंसान की एसेट है? दैट इज़ आवर एसेट, जो हमारा सबसे बड़ा गॉड का गिफ्ट है, वो हमारे पास, वो कौन सा है? क्या है वो? वॉट इज दैट विदाउट विच एवरीथिंग इज ज़ीरो? यस एनीवन? इंसान के पास ही वो चीज़ है जो किसी और के पास नहीं है, और उसके बगैर आप कितना भी पैसा कमा लो, आपके पास कितनी भी अच्छी फैमिली हो, एवरीथिंग इज ज़ीरो। वॉट इज दैट? एनीवन गेस? स्माइल के बगैर भी ऐसे लोग हैं जिनके दांत भी नहीं है, वो उनके होठों में भी सर्जरी हुई है, बट स्टिल दे आर लिविंग, दे कैन एंजॉय लाइफ, दे कैन डांस विदाउट स्माइलिंग। यस? नो? टाइम तो भगवान ने सबको दिया ही है। आप चाहते हो कि मुझे टाइम ना मिले, फिर भी मिल ही जाएगा। विदाउट टाइम तो मतलब इतना बिजी रह के कह सकते हो कि फिर भी टाइम इज देयर फॉर यू टू वर्क, in which you are claiming I am busy. That one thing that is the asset of human being is our mind. Yes? Health, अगर आप कहें health is wealth, लेकिन health, एक healthy आदमी के पास अगर दिमाग नहीं है, he will spoil his mind. A very healthy person or a sportsman, अगर वो drugs लेगा, he will destroy himself. He will deteriorate his health. उसका पूरे बॉडी को वो बर्बाद कर देगा अगर उसका दिमाग खराब हो गया। अगर उसके पास दिमाग नहीं है, अगर वो पागल हो गया, तो उसकी फैमिली को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर सकता। एंड इवन द डिफरेंस बिटवीन हम में और जानवरों में क्या डिफरेंस है? उनके पास हमारे जैसा सोचने वाला दिमाग नहीं है, वेरी लिमिटेड कैपेसिटी है उनके पास, लेकिन हमारे पास है माइंड। एंड इसीलिए मुझे NLP टॉपिक बहुत अट्रैक्ट किया। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो मीन्स माइंड, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज, एंड प्रोग्रामिंग यू ऑल नो नाउ इन केस ऑफ इन द टाइम ऑफ मोबाइल फोन्स, प्रोग्रामिंग सबको पता है, राइट? सो हमारे माइंड की एक लैंग्वेज होती है, हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड NLP। कुछ लोगों को लगता है कि NLP जो है बिजनेस के लिए काम का नहीं है, इट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी, बट देयर इज नो बिजनेस इन दिस वर्ल्ड जिसमें लोग ना हो। इज देयर एनी बिजनेस जिसमें लोग इन्वॉल्व नहीं हो? नो।
जहाँ पे भी लोग इन्वॉल्व है वहाँ पे साइकोलॉजी है, और अगर आपको साइकोलॉजी आती है यू कैन डू मोर बिजनेस. सो इनडायरेक्टली NLP कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन बिजनेस. NLP is Neuro-Linguistic Programming. Our mind, that is the सबसे कीमती चीज़ जो हमारे पास है वो है हमारा दिमाग. लेकिन इस दिमाग का हम बराबर इस्तेमाल नहीं कर रहे. कैसे? यहाँ पे इस वर्कशॉप में आने के बाद भी आपका दिमाग आपको कहता है कि भाई नींद आ रही है, देन आप सो जाओगे. अगर फिर मन से आपको अटेंड करनी है मीटिंग, फिर भी आप सो जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग आपसे ज़्यादा तेज़ है. आपका दिमाग आपका बॉस है. यू आर नॉट योर माइंड्स बॉस, योर माइंड इज़ योर ओन बॉस, योर बॉस. दैट्स वाई आपका दिमाग जो कहता है आप करते हैं. अगर आप बहुत अच्छे से सच धज के आए, किसी ने तारीफ कर दी, यू विल स्टार्ट स्माइलिंग, यू विल फील हैप्पी. अगर थोड़ी सी कुछ कमी रह गई और किसी ने टोक दिया, यू विल फील सैड. आपके दिमाग में ये बात आई कि मुझे किसी ने कहा मैं ठीक नहीं लग रही, इसलिए सैड हो गए, राइट? सो जस्ट ऑब्जर्व, एक दिन के लिए ऑब्जर्व कीजिए कि आपका माइंड आपको क्या क्या गाइड करता है और वो आप फॉलो करते हो. ऐसी कौन सी चीज़ है कि आप गाइड करते हो और आपका माइंड फॉलो कर रहा है? बहुत कम होगी. अगर गुस्सा आया, पहले माइंड में गुस्सा आता है, आप बिहेवियर में गुस्सा ला देते हो, यू फॉलो इट. ऐसा कभी हुआ है कि माइंड में भले गुस्सा आया बट आई विल नॉट फॉलो यू, ओह यू आर नॉट माय बॉस, ऐसा कभी हुआ है? यू शुड ट्राई दिस, यू शुड. ये क्यों नहीं हुआ है? आपने कभी अपने माइंड को ट्रेनिंग ही नहीं दी है दैट आई एम योर बॉस. एक्चुअली हम सब लोग माइंड नहीं है. वी आर नॉट अवर माइंड. वॉट वी आर गॉड्स एनर्जी. वी आर एन एनर्जी फॉर्म ऑफ गॉड. माइंड तो हमें गिफ्ट में मिला है, लेकिन हमने माइंड को क्या बना दिया? बॉस बना दिया कि माइंड जो कहेगा वो मैं करूँगी. अगर किसी ने ना बोल दिया, हम सैड हो जाते हैं. माइंड में वो ट्रेनिंग ही नहीं दी है हमने खुद को. भले ही ना बोले, भले ही कुछ भी बोले, मुझे हैप्पी रहना है. एक बहुत अच्छी स्टोरी है. एक इंसान सुबह उठ के मस्त गार्डन में जा रहा था, पार्क में. उसका अच्छा दिन की अच्छी शुरुआत होने वाली थी और उसके पड़ोसी ने उसको गाली दे दी. ही स्पोक बैड वर्ड्स. उसका पूरा मूड खराब हो गया. लेकिन एक दूसरा आदमी था, उसके साथ सेम घटना हुई. वो गार्डन में जा रहा था, किसी ने उसे बैड वर्ड्स बोले और वो इंसान क्या बोला? आई एम नॉट इन अ मूड राइट नाउ, सॉरी, हम शाम को मिलते हैं. गाली बोलने वाला शॉक हो गया. अरे ये क्या हुआ, मेरी गाली का असर ही नहीं हुआ इस पे. वो खुद पूरे दिन सैड हो गया. अरे भाई मेरी गाली का कुछ असर ही नहीं हुआ इस पे, राइट? तो सामने वाला आपको कुछ दे रहा है, वो लेना या ना लेना ये आपकी मर्जी होनी चाहिए. लेकिन राइट, आप किस पे डाल देते हैं पूरा पावर? अपने दिमाग को बॉस बना दिया है. आप वैसे ही कठपुतली की तरह जीते हैं जैसे आपका माइंड आपको रिएक्ट करवाता है. Isn't it? Yes or no? So NLP has the power to make you your mind's boss, to make you the MD. MD of what? MD word बहुत ही attractive है ना? MD of my recharge. Are you an MD? Do you want to become an MD of your mind? Managing director of your own mind, right? You should be a managing director of your own mind. आपको अपने माइंड का बॉस बनना पड़ेगा, तभी जाके आपकी लाइफ वैसी होगी जैसा आप चाहते हैं, ना कि वैसी जैसा लोग बनाएंगे. आपके आसपास के लोग, आपके नज़दीकी लोग, योर लव्ड वंस. इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उससे भी हम परेशान होते हैं बिकॉज वी डोंट हैव एनी पावर ऑन आवर माइंड. वो जैसा बिहेव करते हैं हम वैसा मूड रखते हैं, हम उतना खुश होते हैं, हम उतना दुखी होते हैं. Isn't it? What is the one foremost thing? एक ऐसी चीज़ क्या है
जो आपके दिमाग के लिए रिमोट कंट्रोल की तरह काम करती है। यू कैन यूज इट लाइक अ रिमोट कंट्रोल, जिससे कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर आर लिस्ट ऑफ टूल्स जिससे कि आप अपने माइंड को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। बट ये जो है आज के लिए, जो मेरे पास लिमिटेड टाइम है, तो मैं आपको ये एक ही चीज़ सिखा पाऊंगी, दैट वन थिंग इज इमोशंस, राइट? इमोशंस, हम सबको पता है इमोशंस क्या है। सबके चेहरे पे अभी इमोशंस दिख रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है, एसी काम करना बंद कर दिया है। ये गर्मी आपका अभी रिमोट कंट्रोल बन गई है, यस? बिकॉज ऑफ दिस गर्मी आप उस रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। एसी ऑन तो आप खुश, एसी ऑफ तो आप सैड। सो यू हैव गिवन योर रिमोट कंट्रोल टू दिस एसी ऑफ दिस हॉल. This is very obvious because we haven't trained our mind to be its own, to be our follower. We have not trained ourselves to be the boss. Emotions कैसा टूल है जो आपके माइंड को गाइड करता है और रिमोट कंट्रोल की तरह आपके माइंड को कंट्रोल करता है। कैसे? अब हम कल ही गए थे यहाँ पे जंगल सफारी सुबह मदन सर के साथ, और वहाँ पे राइनो देखा हमने। जैसे जीप में जा रहे थे, सामने से एक बड़ा सा राइनो आया और उसको साथ में बेबी था एक। तो मैंने पूछा कि ये राइनो, उसका आगे से वो बड़ा सा वो है नहीं, व्हाट विल कॉल, हॉर्न नहीं है? बोले नहीं मैडम, ये फीमेल राइनो है, फीमेल राइनो के हॉर्न नहीं होते। मैंने कहा ओके, अच्छा इसलिए साथ में बेबी है, बेबी को प्रोटेक्ट कर रहा है। थोड़ी देर में राइनो हमारी जीप के सामने आया एज इफ, तो फिर वो ड्राइवर ने कार पीछे, मैंने कहा रुको, हमें नज़दीक से देखने दो राइनो। बोले नहीं नहीं मैडम, ये तो वार्निंग दे रहा है हमें कि पीछे जाओ, मेरे इलाके में आए हो, मेरे बेबी को हार्म करोगे, पीछे जाओ पीछे जाओ। राइनो वॉज गिविंग एज अ वार्निंग। हमने कहा एकदम जीप पीछे ली, उसने समझ लिया कि ये लोग डर गए। वो अपने बेबी को लेके रोड क्रॉस करके निकल गई राइनो। What I learned is, वो राइनो ऐसा नहीं बोली कि अरे बबलू के पापा कहाँ हो, मैनू नहीं जाना, इनको कैसे रोके, आओ। वो ऐसा नहीं बोली। She himself tried to warn us. Why? Because उसके बेबी के लिए जो इमोशंस थे, because of that उसने अपने माइंड को पूरा कंट्रोल करके अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। आपके दिल में, आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए, खुद के लिए क्या इमोशंस है? द लव दैट यू हैव, दैट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ विच विल हेल्प यू टू बी द बॉस ऑफ योर माइंड। दैट विल हेल्प यू टू बी द बॉस ऑफ योर माइंड। आपके इमोशंस को काम पे लगाना है। Use your emotions to be your biggest strength. It will guide you. आपको वो ऐसी आदतों से पीछा छुड़ाएंगे जिसको आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं बचपन में, शादी से पहले ही, बचपन में भी नहीं, कॉकरोचों से बहुत डरती थी। कॉकरोच देख लिया ना, सबको कॉकरोच पता है? कॉकरोच देख लिया मतलब आई स्टार्ट शाउटिंग और मैं दूर भागूंगी। लेकिन एक बार क्या हुआ, मेरा बेटा जब छोटा था, आफ्टर बर्थ ऑफ माई फर्स्ट बेबी ओनली, उसके पास कॉकरोच आया। बेबी के लिए जो इमोशंस था, उसके वजह से कॉकरोच को हाथ में लेके बाहर फेंक के आई। आई कैन बिलीव माई सेल्फ कि आई कैन डू दिस। लेकिन ये इमोशंस की स्ट्रेंथ है कि मेरे माइंड पे हावी हो गई। मेरे दिमाग को भले ही सालों की ट्रेनिंग थी, सालों की हैबिट थी, सालों का डर था, वो एक सेकंड में चला गया। हमारा घर थोड़े आउटस्कर्ट्स में है, जहाँ पे पीछे पहले खेत हुआ करते थे, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि कभी सांप भी आ जाए, स्नेक ऑल्सो कुड कम। तो माई हस्बैंड यूज्ड टू आस्क मी, डरोगी तो नहीं ना, सांप आएगा तो? मैंने कहा तुझसे फिक्र ना करो, डोंट वरी, आई एम हियर, देयर व्हाई टू वरी। मेरे माइंड में इमेजिनेशन क्या आया, मैं खुद जान के हैरान हो गई। इफ माई बेबी इज स्लीपिंग
और अगर वो सांप आ भी गया, उसको ऐसे दबोच के गोल गोल घुमा के फेंकूंगी। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इमोशंस दैट यू कैरी। बिग स्ट्रेंथ इज योर इमोशंस, बट यू हैव टू यूज इट। हम लोग क्या करते हैं, इमोशंस से उल्टा हार जाते हैं, इमोशंस की वजह से ही दुखी होते हैं। अरे इतना इमोशंस है, इतना इमोशनल हूँ, इतना प्यार है कि रोते रहते हैं लोग। या फिर उसी से दुखी होते हैं, मेरे इतना प्यार करती हूँ अपने बच्चों से लेकिन उन्होंने ही मेरी इंसल्ट की, इतना प्यार है अपने पति से लेकिन उन्होंने ऐसा बोला, फिर दुखी हो जाते हैं, काम नहीं करते। बट रिवर्स होना चाहिए, बिकॉज इमोशंस का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? ईगो। ईगो मीन्स इमोशंस गो, ईगो इज इमोशंस गॉन। ये लोग मस्ती करते हैं ना कि वाइफ के बारे में जोक नहीं करेंगे, अरे हम हस्बैंड के बारे में जोक करेंगे। हस्बैंड के साथ जब झगड़ा होता है ना, तो क्या होता है, हस्बैंड को ईगो आ जाता है। हाँ, ईगो, यू नो, मेल ईगो। उसने मुझे ऐसा कहा, मेरी वाइफ ने मुझे ऐसा कहा। ये इसको कहते हैं ईगो। हस्बैंड के मन में प्यार तो होता ही है, लेकिन इस समय जब ईगो आता है, इमोशंस गॉन, इसीलिए वो ईगो में झगड़ा बंद नहीं होता। अगर वाइफ बहुत ज़्यादा समझदार है, मेरी तरह NLP किया हुआ है, तो क्या करेगी? अरे अपना ईगो अपने पास तुम रखो, मेरे पास इमोशंस है ना, चलो भाई मान जाओ, मैं हारी। अंदर से तो पता ही है जीतने हार से क्या फर्क पड़ता है ना? तो ईगो नहीं रखने से, इमोशंस आपके हाथ में है, तो आपकी लाइफ के हर एक मोमेंट पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यू कैन सॉल्व एनीथिंग। आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। मुझे इमोशंस के पीछे जाना है, ईगो पे पीछे नहीं। अपना माइंड इमोशन से कंट्रोल करना है, नॉट लेट माइंड कंट्रोल माई इमोशंस, है ना? माइंड जब इमोशंस पे हावी हो जाएगा तो ईगो आ जाता है और तभी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन इतनी सिंपल चीज़ अगर आप समझ गए कि आपका रिमोट कंट्रोल आपके इमोशंस के हाथ में है, आपके हाथ में है, तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ जीत सकते हैं, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दुनिया में ऑलरेडी है, जैसे झांसी की रानी अपने बच्चे को पीछे लेके लड़ी थी ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उसको लोग आज भी याद करते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं, सिंगल है, यू डिसाइड आपको अभी एज अ सिंगल लेडी कैसे जीना है, अकॉर्डिंगली वैसा ही हस्बैंड आपको मिलेगा। अगर आप डिपेंडेंट होकर अभी से सिर्फ एक्सपेक्ट करेंगे मेरा हस्बैंड रिच होना चाहिए, मेरा हस्बैंड पैसे वाला होना चाहिए, लेकिन आप पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इतना सेलिब्रेशन कर पाएंगे लाइफ में, राइट? मैं अपनी मर्जी से काम करती थी जब ज़रूरत थी, अपने बच्चे को डे केयर में छोड़ के जाती थी पढ़ाई करने, जॉब करने, और अपनी मर्जी से मैंने जॉब छोड़ी और काम छोड़ा, बिकॉज फॉर माई किड्स जो ज़रूरी है वो कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं सोचती मैंने NLP किया है, मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैं जॉब क्यों नहीं करूं, मैंने इतना पढ़ा है, मैं क्यों जॉब नहीं करूं। नहीं, इमोशंस कम फर्स्ट। माई बेबी नीड्स मी, तो फिर नो कंपल्शन, कोई ज़रूरत नहीं है वो काम करने की जो आप चाहते नहीं हो और जो करना नहीं चाहिए। वो कीजिए जो कि ज़रूरी है, वो आप सोचते हैं आपके लिए ज़रूरी है, देन यू डू इट। कई बार लुक्स के रिलेटेड फीमेल को भी, आज से मेल को भी होता है प्रॉब्लम्स। मैं देखती हूँ मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मेरे कपड़े कैसे हैं। हम सब कुछ पहनते हैं, करते हैं ताकि दूसरों को अच्छा लगे, राइट? लेकिन आज से एक हैबिट रखिए, इतना सजिए धजिए लेकिन खुद के लिए, फॉर योर ओन सेल्फ, बिकॉज यू आर द वर्ल्ड फॉर योर लव्ड वंस, राइट? आपके बच्चों की आप ही दुनिया है, आपके हस्बैंड की आप ही दुनिया है। अगर आपको खुद भी शौक ना हो, उनके लिए भी सजते धजते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है,
यू डू वॉट एवर यू डू फॉर योर ओन सेल्फ, फिर एक अंदर से इंडिपेंडेंट फीलिंग आती है, भले ही कोई कैसा भी कहे। अब आपने किसी अफ्रीकन को देखा कि वो इन्फीरियर फील कर रहा है, अरे मैं काला हूँ, अरे मैं काला हूँ, नो, उसने खुद को एक्सेप्ट किया है। दिस इज द स्किन कलर गॉड हैज गिवन मी, दिस इज आई एम, व्हाई टू वरी, दिस इज आई एम। हम बहुत घूमे, पिछले 1 महीने से हम लोग अलग अलग जगह घूम रहे हैं, मेघालय गए थे, असम गए थे, भूटान गए थे। सो एक बार मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि इतना धूप में घूमने से मेरा तो पूरा स्किन टोन चेंज हो गया है। अरे बोलो, स्किन कलर को मारो गोली, हाँ, गो बियॉन्ड इट। अभी स्किन कलर को कौन देखता है? आपका जो मेन पर्सनालिटी है वो तो कलर के पीछे है। सो दैट टाइम आई रियलाइज रियली यस, हम अपने स्किन कलर को भी लेके कितना ऑब्सेस्ड होते हैं। इतना ही ऑब्सेस्ड अगर हम अपनी फ्रीडम को लेके होंगे, अवर लाइफ विल चेंज। पैसों से अगर आपको खुशी मिलती है, आपको लगता है पैसे आने से फ्रीडम मिलेगी, इंडिपेंडेंस मिलेगा, अर्न इट, वर्क फॉर इट। क्या शर्म है कि लोग क्या कहेंगे? डिग्री भी आपको क्यों रोकेगी? अरे मैंने तो इतना बड़ा है, मैं ये बिजनेस क्यों करूं? मुझे तो 1 लाख सैलरी मिलेगी, मैं क्यों करूं? ये चीज़ आपको क्यों रोक रही है? बिकॉज आपने अपना रिमोट कंट्रोल डिग्री के हाथ में दे दिया, या आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में दे दिया। वो क्या कहेंगे? इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद ये बिजनेस कर रही हैं। डू वॉट एवर इट टेक्स इफ यू वॉन्ट फ्रीडम। दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज फ्रीडम, एंड दैट टू मेंटल फ्रीडम। अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करने की जो फ्रीडम है, स्टार्ट लर्निंग इट और स्टार्ट अप्लाइंग इट इवन इन बिजनेस। जानिए खुद को कि क्या चीज़ है वो जिससे कि आपके कदम पीछे हट रहे हैं। जानिए कि क्या चीज़ है वो जिससे कि आप दुखी हो रहे हैं। जस्ट ऑब्जर्व इट फॉर 1 day, जस्ट ऑब्जर्व एंड देन डिसाइड कीजिए दैट आई वॉन्ट टू कॉन्कर इट। अब से मैं कभी भी अपने माइंड की गुलाम नहीं बनूंगा या नहीं बनूंगी। And then you are the most happiest, richest, wealthiest and healthiest person of this world. Why healthiest? Healthiest क्यों कहा मैंने? मैं जब यहाँ आई तो मैंने देखा गोविंद सर और सारी टीम मेंबर्स विथ 6 packs. I was shocked. पहली बार MLM टीम में इतने बॉडी बिल्डर्स देखे। And I asked them. They told, मैम health is first. लेकिन मैंने एक चीज़ ये देखी कि ये सारे लोग जो है वो मेंटली बहुत फिट है, बिकॉज उन्होंने अपने आप को जीता है। क्या उनका मन नहीं कर रहा होगा आइसक्रीम खाने का? क्या उनका मन नहीं किया होगा आज सोते रहते हैं, देर से उठना ही नहीं है? उनका भी मन किया होगा, लेकिन दे वन, वो जीत गए। उन्होंने अपने माइंड को जीता कि भाई माइंड चुप बैठ, मुझे उठना ही है। माइंड चुप बैठ, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। अरे माइंड चुप बैठ, मुझे लेजी नहीं बनना। तभी जाके उन्होंने हेल्थ हासिल कर ली। यस और नो? सो टू बी द मास्टर ऑफ योर माइंड, टू बी द MD ऑफ योर ओन माइंड, टू बी द MD ऑफ योर लाइफ, you should learn how to win your mind, how to control your mind. And for that, the foremost thing you should remember is use your emotions. First tool I can teach, one and the only tool I can teach today is your emotions. In your emotions, say to yourself, I'm enough. I'm enough. कोई भी आपको कहे तुझे ये नहीं आता, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू मोटी है, तू काली है, I am enough. Reject that. जो कुछ भी कोई नेगेटिव बोलता है, रिजेक्ट, गिव रिजेक्शन. आपको लोग क्या रिजेक्शन देंगे? आप हर रोज रिजेक्ट करो सबको. यस, आई एम इनफ, आई विल, आई कैन. These are the 3 statements you should repeat every day in your life. Can you repeat with me?